everyone. So, as we have discussed octacarbonyl dicobalt compound and it acts as catalyst, and we have seen in the previous video its importance for the oxo process, and you can check that video. And then now the third reaction which it gives, that is hydrocarboxylation. From the word it's clear that we should add a hydro group and a carboxy group. So H and CO group should be added. And here we have taken an alkene, that is RCH double bond CH2 plus carbonyl CO group in the presence of catalyst CO2 carbonyl 8 times. So first reaction it is with alcohol. So alcohol means ROH. Now how the reaction proceed? So for that now we see this. So first is that this ROH group breaks into two parts. It is one part is H positive ion and the other part is alkoxide ion, that is OR negative. So I'm showing this that if you have this ROH, so it breaks into two parts. One part is one part is OR negative, another part is H positive. So this is H positive part and one is OR negative part. So like that, the addition of hydrogen will be there on one carbon, and here the addition of carbon will be on that carbon having the least number of hydrogen atoms, and addition of OR group, that is alkoxy group, will be on that carbon having the more number of hydrogens. So see here in the first reaction it's shown that on the reaction of alkene with ROH you get RCH2 single bond CH2 CO and OR. उस CO की एडिशन होगी जो हमने लिखा हुआ है CO ग्रुप, उसके साथ में ये CO ग्रुप था और उसके साथ में एडिशन हो जाएगी ये हमारी OR alkoxy ग्रुप की. Now showing in the second example that is given here. So here is the ammonia. You have NH3. Like alcohol, it should be break into two ions. So ammonia here break into two ions, which is NH3 will be breaking into H plus and NH2 negative. So NH2 negative will be going towards that carbon having more number of hydrogen atom, and while the NH2 group will be going to that carbon having the having the more number of hydrogen atoms. और यहाँ पे जो हमारा पहली कार्बन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो उसके पास दूसरा हाइड्रोजन चला गया यहाँ से अमोनिया से, तो बन गया RCH2 CH2 इसका, और ये CO ग्रुप ऐड हो जाएगा, देन इज NH2 अमाइड ग्रुप लग जाएगा. तो हमारे पास अमाइड बन गया कि एल्कीन से अमाइड बन गया अमोनिया, और प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट विच वी आर डूइंग. एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑफ वाटर, एंड यू नो दैट वाटर इज ऑल्सो ब्रेक्स इनटू टू आयंस. One is H plus, other is OH negative. So H plus goes to that carbon having less number of hydrogen atom, and OH going to that carbon having the more number of hydrogen atoms. So we get an acid RCH2 CH2COH. We get an carboxylic acid from alkene by the use of this catalyst. And then again the showing the next reaction is also with the alcohol. Again you will get an ester product RCH2 CH2COR. It show it this catalyst also used for the formation of ring. तो रिंग की फॉर्मेशन हो जाए, एक तरह के कंपाउंड अमाइड और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएं. इसमें हमने जैसे अमाइड ग्रुप हमारा बन गया था, ठीक है, अमाइड ग्रुप हमने कर लिया है, इसमें उन्होंने लिया है एक अल्कीन और अमाइड CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2, उसमें CO ग्रुप ऐड किया, वाटर किया, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारे पास अमाइड और एसिड बन गया, और वाटर के लॉस के साथ हमारे पास रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है. सो आप पहली जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी दैट इज़ शोइंग इन द फर्स्ट थ्री कह लो, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होती है, इस कैटलिस्ट की क्या यूज़ थी, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ही अल्कीन जो है रिएक्शन को शो करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड. जो सैचुरेटेड है मीन्स उसमें सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अल्काइल हैलाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने करनी है कार्बोक्सिलेशन.
carboxylation reaction of alkyl halide. Alkyl halide is RCH2CH2X. It's an alkyl halide. We have added here CO group and ROH alcohol, and we have taken here the monoanion of our catalyst which we have chosen. Catalyst octa carbonyl compound कर रहे हैं, उसका ही monoanion ले लिया, और ये भी प्रीवियस ईयर में बता दिया था how it forms monoanion. एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ भी जो अल्काइल हैलाइड है वो भी एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है RCH2CH2COOR. एंड द नेक्स्ट रिएक्शन नाउ शोइंग इट्स मैकेनिज्म, हाउ इट्स प्रोसीड, हाउ अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू एन एस्टर in the presence of octacarbonyl compound. So firstly we have RCH2CH2X alkyl halide, first added a monoanion NaCO4, it gives rise to RCH2CH2, this CO carbonyl 4 times, and further it loses one carbonyl group, so we have only CO3, 3 रह जाएंगे क्योंकि इसमें 4 थे, 4 में से एक जो कार्बोनिल है वो लॉस हो गया. उसके बाद इसमें 2 कार्बोनिल एक्स्ट्रा ऐड कर दिए. 2 कार्बोनिल जब एक्स्ट्रा ऐड किए तो वन ऑफ द जो कार्बन ग्रुप है वो यहाँ पे शो कर दिया है, और बाकी के 4 यहाँ पे अगेन कंप्लीट हो जाएंगे. फर्दर रिएक्शन किसकी होनी है? अल्कोहल के साथ होनी है. अल्कोहल के साथ होने के बाद हमारे पास एस्टर बन जाएगा. तो कैसे अल्काइल हैलाइड से एस्टर बना, तो ये हमारा मैकेनिज्म है. नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN विद एल्कीन. अगर HCN की अल्कीन के साथ एडिशन करनी है, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड डज नॉट ऐड टू एन अनरिएक्टिव डबल बॉन्ड. कोई भी डबल बॉन्ड सिंपली प्रेजेंट है तो उसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन यूजुअली नहीं देता, बट ये कैटलिस्ट का यूज़ है. जो हमारा ऑक्टा कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन पॉसिबल है, और यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हुई, और क्या कंपाउंड बन रहा है? RCH साइनाइड और CH3. तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरे पास, आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे मेरे पास जो HCN है उसमें H पॉजिटिव है और दूसरा पार्ट CN नेगेटिव है. अगर हम प्रीवियस रिएक्शंस की बात करें तो H उस कार्बन के पास जाता था जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, और CN मतलब CN को उसके पास जाना चाहिए जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. बट यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड का जो H होगा वो उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और साइनाइड जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. सो यहाँ पे अलग है रिएक्शन, इसको मार्क कर लेना कि हाइड्रोजन साइनाइड कैसे रिएक्शन देता है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज दिस, दैट इज Pawson-Hunt रिएक्शन, और यू कैन से इट्स Pawson-Hunt रिएक्शन. व्हाट इज इट? कोबाल्ट कैटालाइज्ड अल्काइड साइक्लो एडिशन. तो यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन है, इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि एडिशन हो रही है और फॉर्मेशन हो रही है एक रिंग की. तो ये कैसे रिएक्शन होती है? सबसे पहले तो आप इसके नेट पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वी जस्ट डिस्कस इट्स बेसिक. तो इस रिएक्शन में हमारे पास एक अल्काइन होता है, अल्काइन में अल्कीन की रिएक्शन होती है. सो यहाँ पे कपलिंग है एक अल्काइन की विद एन ऑल्फिन और साथ में CO इन अ वन सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और कैटलिस्ट कौन सा है? ऑक्टा कार्बोनिल कंपाउंड. सो सबसे पहले आपने ले लिया R ट्रिपल बॉन्ड R. सो RC ट्रिपल बॉन्ड CR. You can say it's an alkyne. Now we have chosen an alkene which is as shown to you. This is your alkene. So this is your alkene, this is your alkyne. On the reaction proceeds to form a ring. Now you have this, that here is the insertion of CO group, and rest of the compound is this is of alkyne जो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. जो डबल बॉन्ड था वो सिंगली में कन्वर्ट हो गया, और ऐसे करके इसमें ये सिंगल है, ये डबल है, और CO ग्रुप बीच में इंसर्ट हो जाता है. तो ये ऐसा है कुछ, ठीक है. ये कंपाउंड आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे बन रहा है. दिस इज़ द कंपाउंड. नाउ लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म, हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स. So firstly, in the first step you have the alkene which is shown with the blue color. This is alkyne, RC triple bond CR2, 1 and 2. And now the first is in the presence of catalyst. The reaction how proceeds, it's a CO2 carbonyl 8 times. Now let's see how the reaction proceeds. So firstly this is alkyne. Alkyne is giving the reaction with this catalyst, and on reaction with the catalyst is forming a
इट्स फॉर्मिंग अ कंपाउंड विच इज़ RCR। ये एज इट इज़ रहेगा। इसके साथ वो सारे कैटलिस्ट के 2 कोबाल्ट लग जाएंगे। दोनों कोबाल्ट के पास जो है 3 कार्बोनिल ग्रुप्स चले जाएंगे। CO विद CO3, अगेन अदर CO विद 3 CO, तो 3 CO ग्रुप चलेगी हर एक कोबाल्ट के पास। अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन होगी एक कार्बोनिल की। सबसे पहले एक कार्बोनिल क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। जब ये कार्बन डिसोसिएट हो गया तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक कोबाल्ट के पास 3 कार्बोनिल है और दूसरे कोबाल्ट के पास सिर्फ 2 ही कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब अल्काइन का काम हो गया यहाँ तक। उसने कैटलिस्ट के साथ, अल्काइन ने कैटलिस्ट के साथ ऐसे रिएक्ट कर लिया। अब है एडिशन ऑफ एल्कीन की बारी। जब आप यहाँ पे एल्कीन डालोगे, एल्कीन के जो R ग्रुप हैं वो R3 और R4 ले लिए, शोन इन द ग्रीन कलर। सो ग्रीन कलर में आपको अल्कीन मिल रहा है। अल्कीन जब होगा वो जाके वहाँ पे अपनी अटैचमेंट कर लेगा। तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रही है कि जो हमारे पास कोबाल्ट था, 1 कोबाल्ट जिसमें से CO ग्रुप बाहर निकल गया था, उसमें अब एल्कीन की इंसर्शन हो गया। एल्कीन बीच में ऐड हो गया, एल्कीन ऐड हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि कार्बोनिल फिर से हम एक और देंगे और वो कार्बोनिल जाके कोबाल्ट पे अटैक करेगा और आपको मिल रहा है ये कंपाउंड। आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। एक रिंग की फॉर्मेशन करने के लिए हमने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, आप इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपके पास वो एज इट इज़ कंपाउंड था और उस कोबाल्ट के साथ ये जो कोबाल्ट, एक कोबाल्ट के साथ तो 3 कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज़ अटैच है और दूसरे कोबाल्ट के पास भी 3 कार्बोनिल ग्रुप आ गए क्योंकि CO एक और इंसर्ट करवा दिया। अब उसके साथ में बॉन्डिंग किसने कर ली, अल्कीन की कार्बन ने बॉन्डिंग कर ली और वो डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद होगी CO के साथ रिएक्शन और CO में 2 पार्ट्स हैं। जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है और जो कार्बन है दैट इज बिहेविंग एज अ नेगेटिव ग्रुप, क्योंकि CO की इंसर्शन करवानी है। अब CO ग्रुप को कोबाल्ट के और कार्बन के बिल्कुल बीच में पिंक कलर के साथ आपको दिख रहा है कि कार्बन ग्रुप बीच में ऐड हो गया। सो ये ऐसे करके आपकी डायग्राम मिल जाएगी। उसके ये स्ट्रक्चर आपको एज इट इज़ क्लियर हो जाएगी जब आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास एक कोबाल्ट है जिसके पास 3 CO ग्रुप है, वो अपनी बॉन्डिंग वहाँ पे शो कर रहा है ना, उसके पास जा रहे इलेक्ट्रॉन्स, कोबाल्ट कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देगा और वहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की उस कोबाल्ट के पास, नेक्स्ट वाले कोबाल्ट के पास, और आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, और फर्दर ये आपको एक रिंग फॉर्मेशन मिल गई और जो कैटलिस्ट है एंड में वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। और फर्दर आपके पास जो आपको कंपाउंड चाहिए था कि एक रिंग की फॉर्मेशन विद द इंसर्शन ऑफ CO ग्रुप, दैट इज़ फॉर्म्ड। सो दिस इज़ Pawson-Kahn reaction. So I hope it's clear to you. Thank you. You can check on writing your notebook. So if any query, you can ask in the comment box.